A very good evening to all. Uh, am I audible to everyone? Good Yes, sir. evening, Good sir. evening, sir. Yes, Good sir. evening. Good evening. So, Yes, sir. today we are going to see about how to create a research presentation using PowerPoint. So, hopefully last class का जो exercise था सबको सब लोग ने practice कर लिया होगा. So, today we'll proceed to how to create a research presentation. So, the purpose of an oral presentation, research presentation, is to showcase your result findings, and this is a very important task that we have to do. As researchers, we have to present our research findings, that whatever we have done in our research, what new things we have found in our research. So the main idea of the research is to create something which is new, or to uh, basically to create something which is new actually. यही एक मेन पर्पस होता है रिसर्च का. Either it may be modifying a present current algorithm, or adding some additional ways of performing a particular activity. And also the purpose of the research should be to help the society and the research community, to increase the knowledge of the research community, to give some highlights or pathways towards new ideas which was not earlier um, probed by other researchers. तो उस टाइप का कुछ टाइप का जो रिसर्च आप हमारा होना चाहिए. So it is very much needed in academic community to present our research in a very proper way. So in order to what should be the main idea behind the presentation? The first should be to communicate the importance of your research. So how your research is important, how you think the research is important, how it will help the society, how it will help the research community, or how it will um, benefit someone or some groups. जनरली जो है ये बेनिफिट वाइज हमको दिखाना पड़ता है कि हमारा रिसर्च जो है इट क्रिएट्स सम बेनिफिट्स. बिना बेनिफिट्स के अगर हम कोई रिसर्च बना रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं जिसमें कोई बेनिफिट नहीं है सोसाइटी को या फिर एक पर्टिकुलर ग्रुप को या कम्युनिटी को, तो फिर उसका उस रिसर्च से कोई वैल्यू नहीं रहता है. नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट जो हमको ध्यान में रखना है, दैट इज क्लियरली स्टेट योर फाइंडिंग्स एंड द एनालिसिस ऑफ दोज फाइंडिंग्स. So whatever research we have done, there must be some outcome of the research, and those outcome of the research is the output of the research. But during the process of achieving that output, there should be some activities that must have performed. some से कोई भी चीज़ को करने से पहले कई बार गलत भी होता है, फिर वो सही होता है. So that those things are the findings, one of the very important findings that we have achieved during the process of the research. तो रिसर्च प्रोसेस के वक्त हमने क्या क्या चीज़ें फाइंड किया, those findings are very much I can say uh, कनेक्टेड टू द रिसर्च. तो हम जो रिसर्च कर रहे हैं उससे कनेक्टेड वो फाइंडिंग्स होंगी, एंड दैट फाइंडिंग्स हेल्प्स टू get ideas in the minds of other researchers to go on with the research. मतलब एक तरीके का उनको फ्यूचर स्कोप मिलने लगता है जब हम फाइंडिंग्स बताते हैं. एनालिसिस ऑफ द फाइंडिंग्स देना बहुत ज़रूरी है. जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव यूज्ड डेटा. तो जनरली हम डेटा यूज़ करते हैं हमारे एल्गोरिदम के लिए. हमने कोई एल्गोरिदम डिज़ाइन किया है तो उसमें हम डेटा रख उसको डेटा फीड कर रहे हैं. So when we are using the data, we have to specify which kind of data we are using. The properties of the data are to be highlighted. The properties मतलब statistical analysis of the data should be highlighted. Statistical analysis का मतलब हो गया जैसे डेटा का कुर्टोसिस, उसका मीन मीडियन मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, और जो है बहुत सारे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होते हैं विच इज़ मोर रिलेवेंट टू द थिंग दैट वी हैव डन. उससे रिलेटेड जो एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इससे क्या होता है कि आप यू एक्सप्रेस योर इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ व्हाट यू हैव डन. सो इससे जो है द
evaluators are satisfied that you have done your work very deeply. Prompt others in the academic community to ask questions and give you valuable feedback that could further strengthen your research. So before you go on for a presentation, actual presentation, give presentation to in front of your colleagues and your seniors so that they can give you some creative ideas. ऑल्सो क्या होता है कि आप रिसर्च आप शुरू कर रहे हैं तो शुरुआत में करना बहुत अच्छा होता है कि आप अपने रिसर्च जो बेसिक रिसर्च आपने अभी किया है उस पे एक प्रेजेंटेशन बना के अपने कोलीग्स से डिस्कस करना सो दे विल गिव यू सम पॉजिटिव इनपुट्स दे विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दैट वेदर दिस रिसर्च इज वर्थफुल और नॉट ऑल्सो. इस पे भी काफ़ी आपको जो है समझ में आने लगेगा कि वर्थफुलनेस भी है कि नहीं रिसर्च का. क्योंकि क्या होता है हम खुद कुछ काम कर रहे हैं तो हमको उसमें गलतियां कम नजर आती हैं, दूसरों को ज्यादा गलतियां नजर आती हैं बिकॉज इट्स ए वेरी बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी. तो इसका एडवांटेज उठाना है. कैसे करना है कि हमारे हमने जो रिसर्च अभी तक किया है जैसे एक बेसिक रिसर्च किया है उसको जो है अपने फ्रेंड्स को जो समझ सकें उस रिसर्च के बारे में अपने कोलीग्स को अपने सीनियर्स को उसको दिखाएं. सो नेचुरली दे विल गिव सम आइडियाज. उनको जो है लगेगा कि ये हो सकता है ये नहीं हो सकता है. और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं नेगेटिव पॉजिटिव सभी कमेंट्स मिलेंगे. तो स्पेशली हमको नेगेटिव कमेंट्स को कैप्चर करना है अपने दिमाग में और उन नेगेटिव कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए हमारे रिसर्च को स्ट्रेंथन करना है. सो दैट हेल्प्स टू स्ट्रेंथन द रिसर्च. तो टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन इज द जैसे मैंने शुरुआत में भी आपको एक आइडिया दिया था व्हेन वी स्टार्टेड पावर पॉइंट. सो द बैकग्राउंड ऑफ द इंटायर प्रेजेंटेशन इज वेरी वेरी नेसेसरी इंपॉर्टेंट क्योंकि बैकग्राउंड जैसे कॉन्ट्रास्ट में होना चाहिए. फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड शुड बी इन ए वेरी कॉन्ट्रास्ट वे मैनर सो दैट इट इज वेरी मच विजिबल टू द ऑडियंस. तो यूज सिंपल बैकग्राउंड्स दैट प्रोवाइड सम विजुअल इंटरेस्ट. तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे दिस बैकग्राउंड जो दिया है ये बबल्स का बैकग्राउंड जो दिया है ब्लू कलर में इट्स नॉट ए वेरी गुड बैकग्राउंड बिकॉज ये जो है इट विल हिंडर विद द टेक्स्ट दैट यू आर प्रेजेंटिंग. सो ये टेक्स्ट जैसे लिखा है जो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रीड बिकॉज इस टाइप का अगर आप बैकग्राउंड यूज करें दैट इज नॉट गुड. सो जनरली वाइट बैकग्राउंड के ऊपर ब्लैक से लिखी है ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर वाइट से लिखी है. सो एकदम कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट में रखना चाहिए. Always use the same background throughout the presentation. So the background should not change in every slide or in few slides it is getting changed. जो है font भी ऐसे change नहीं होना चाहिए. Font भी standardized रखना चाहिए. So generally what we prefer is to use white background and black foreground for the fonts. The font face or the font type should be Times Roman and the font size should be such that it should be very much visible from a distance. And the font जैसे मैंने कहा कि टाइम्स रोमन जो है काफ़ी स्टैंडर्ड फॉन्ट है बहुत बढ़िया फॉन्ट होता है और उसको बोल्ड करके जहाँ जरूरत है वहाँ पे बोल्ड लिखना है. इससे क्या होगा कि इट क्रिएट्स अ वेरी गुड इफेक्ट ऑन द व्यूअर्स. सो throughout the presentation the background should be fixed, it should not change. Throughout the presentation the font should be fixed, it should not be changed. Font size को जो है आप जरूरत के हिसाब से बड़ा छोटा कर सकते हैं. So try not to use backgrounds that are distracting or make it difficult to read the words. So these are some examples. यहाँ पे आप देखेंगे कि सर एक चीज पूछनी थी. हाँ जी बोलिए सर. फिर आप अगर हम उसको कहीं बड़े बोर्ड पे प्रेजेंटेशन दें हाँ फिर भी हमारा फॉन्ट साइज एक आपको तो पता ही होगा कितना हाँ. अकॉर्डिंग होना चाहिए 20-22 होना चाहिए कि 30-35 के बीच में होना चाहिए. सबसे पहले तो देखिए आप जैसे अभी ये प्रेजेंटेशन हमारा चल रहा है इसमें आप देखेंगे सिर्फ 3 पॉइंट्स हमने मेंशन किया है यहाँ पे. ठीक है. सो जब आप कम नंबर ऑफ पॉइंट्स पे मेंशन करेंगे अपने स्लाइड में तो यू कैन इंक्रीज द फॉन्ट. सो जनरली हम क्या करते हैं जितना पॉसिबल होता है बड़े साइज में हम रखते हैं फॉन्ट को. लेकिन उसको भी थोड़ा बैलेंस में रखना पड़ता है जैसे टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ योर प्रेजेंटेशन. ये जो है हेडर है तो ये फॉन्ट जो है इसका फॉन्ट साइज बड़ा रहना चाहिए. और नीचे में देखेंगे बैकग्राउंड और जो बुलेट्स यूज कर रहे हैं हम लोग उसमें जो कंटेंट आ रहा है वो जो कंटेंट है उससे छोटा फॉन्ट में होना चाहिए. एंड ये जो है एक तरीके का कहना चाहिए बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा. और फॉन्ट साइज एकदम फिक्स नहीं होता है. इट इज एज बिग एज पॉसिबल रहना चाहिए लेकिन वो भी मतलब उसकी जो रीडेबिलिटी है वो खराब नहीं होनी चाहिए. बहुत ज्यादा बड़ा कर देंगे तो क्या होगा कि आप मल्टीपल लाइंस में एक ही
जो सेंटेंस है वो मल्टीपल लाइंस में आने लगेगा, तो वो उतना भी ठीक नहीं होता। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, ऑलवेज यूज द सेम बैकग्राउंड थ्रू आउट द प्रेजेंटेशन। अब मैं इसको अगर ह्यूज करते जाऊँ तो क्या होगा कि ऑलवेज यूज द सेम करके एक लाइन पे आएगा, फिर नीचे में उसके बैकग्राउंड थ्रू आउट द आएगा, उसके बाद द प्रेजेंटेशन आएगा, तो वो ठीक नहीं होगा। सो सेंटेंसेस जो है जनरली ऐसा होना चाहिए कि जो हम सेंटेंसेस पुटअप कर रहे हैं वो जनरली एक लाइन में आ जाए तो अच्छा है। जैसे एक लाइन का सेंटेंस है तो एक ही लाइन में आना चाहिए। मल्टीपल लाइंस में जा सकता है अगर सेंटेंस बहुत लंबा है, फिर भी अवॉइड करना चाहिए लॉन्ग सेंटेंसेस को। जैसे इन दिस केस, ट्राई नॉट टू यूज बैकग्राउंड दैट आर डिस्ट्रैक्टिंग और मेक इट डिफिकल्ट टू रीड द वर्ड्स। इसमें क्या हो रहा है, ये 2 लाइन में आ गया है, सो इट इज टॉलरेबल। यही अगर 3-4 लाइन में आ जाए तो इट इज नॉट टॉलरेबल। सो उसका हमको बैलेंस देखना पड़ता है। फॉन्ट साइज भी हमको बड़ा रखना है, बहुत ज़्यादा लाइंस भी नहीं दिखने चाहिए, पॉइंट्स जो है वो क्लियर कट दिखने चाहिए, पॉइंट्स के बीच में स्पेसिंग भी हमको चाहिए। तो ऐसे करते करते आप एक एक बैलेंस में आ जाएंगे कि आपको समझ में आ जाएगा कि ये फॉन्ट रखने से, ये फॉन्ट साइज रखने से सबसे बेस्ट दिख रहा है। ओके सर। ठीक है। हाँ। ओके, थैंक यू सर। हाँ, वेलकम। सो टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ ए प्रेजेंटेशन अगर देखा जाए तो फर्स्ट टेक्निकल एस्पेक्ट इज द कलर। सो यूज ए टेक्स्ट कलर दैट कॉन्ट्रास्ट विद द बैकग्राउंड। जैसे अभी मैंने कहा कि वाइट बैकग्राउंड के ऊपर आप ब्लैक कलर यूज कीजिए, दैट इज द बेस्ट काइंड ऑफ ए कॉम्बिनेशन। या तो आप बैकग्राउंड वाइट है तो, या लाइट बैकग्राउंड रखें, बहुत ज़्यादा लाइट रखें, सिम मतलब इट इज इन सिंक विथ वाइट कलर, इस टाइप का ही बैकग्राउंड रखें। बहुत ही लाइट कलर में बैकग्राउंड रखना है। और उसका जो कॉन्ट्रास्ट में, जैसे आप जैसे रख सकते हैं कि अगर एकदम लाइट येलो, बहुत ही लाइट येलो अगर बैकग्राउंड है, तो आप डार्क ब्लू में भी जो है उसके जो फोरग्राउंड को रख सकते हैं। सो वो बहुत ही कॉन्ट्रास्ट में रहना चाहिए, सोबर लगना चाहिए। सी, तो यूज ए टेक्स्ट कलर दैट कॉन्ट्रास्ट विद द बैकग्राउंड, यूज कलर फॉर एम्फेसिस। सो जहाँ पे आपको लगता है कि इट इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू बी एम्फेसाइज्ड, से दिस इज द, से सम पार्ट ऑफ द रिसर्च दैट यू वांट टू हाईलाइट, तो उसको जो है अलग कलर में दिखाएं। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि विजुअली जो है तुरंत समझ में आना चाहिए दिस इज समथिंग विच इज स्पेशल। सो एम्फेसिस फॉर गिवन टू अ पर्टिकुलर थिंग दैट, से कि कोई कीवर्ड है जिसको आप कहना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, यू हैव क्रिएटेड सम टाइप ऑफ एन एक्टिव एल्गोरिदम, तो उस एल्गोरिदम का एक आपने एक नेम रखा है, तो उस नेम को आप जो है एक अलग कलर में रिप्रेजेंट करें, सो दैट people can immediately understand that this is something special and you are emphasizing on that particular keyword. Keep color simple, less is more. So as less as possible coloring करना है। वाइट कलर इज द, वाइट और ब्लैक कलर बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन होता है। और आप चाहें तो बहुत लिमिटेड वे में कलर्स यूज करें, जो बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा कलरफुल नहीं बनाना है। यूज कलर्स पेयरिंगली, जैसे मैंने भी कहा बहुत ज़्यादा कलरिंग ठीक नहीं होता है। यूज कलर्स टू टाई पॉइंट्स टुगेदर, सो सिमिलर अगर पॉइंट्स हैं तो उनका सेम कलर रहे, दैट वी शुड इंश्योर। ऐसा नहीं होना चाहिए पॉइंट 1 इज ऑफ सम कलर, पॉइंट 2 इज ऑफ अनदर कलर, ऐसा नहीं होगा। बिकॉज इन ए पर्टिकुलर स्लाइड द पॉइंट्स शुड बी इंटर रिलेटेड, एंड इफ दे आर इंटर रिलेटेड दैट मीन्स देयर कलर शुड बी मैचिंग। तो ये ध्यान में रखना पड़ता है। कई बार जो है बहुत ज़्यादा कलरफुल बना देते हैं, तो दैट क्रिएट्स ए बैड इफेक्ट or bad impression. So that has to be understood. Then comes the fonts. So fonts should be standard and easy to read. Times New Roman is one of the very commonly used fonts. Arial और Calibri भी जो है काफ़ी अच्छा legible रहता है. It is quite good. But जैसे मैंने कहा था कि एरियल फॉन्ट में कुछ प्रॉब्लम होता है। जैसे आप अगर, जैसे यहाँ पे आपने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देखिएगा एल लिखा हुआ है, यहाँ पे एरियल में एल लिखा है। सो आप अगर कैपिटल आई लिखेंगे तो भी वो एल के जैसी दिखेगा। सो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कुछ कुछ फॉन्ट्स में। सो टाइम्स न्यू रोमन इज वन ऑफ द बेस्ट फॉन्ट्स टू बी यूज्ड। द टाइटल ऑफ द स्लाइड शुड बी अबाउट 44 पॉइंट्स। अभी एक ये जरूरी नहीं है, बट एक सजेशन है कि 44 पॉइंट्स का जो है, द टाइटल शुड बी 44 पॉइंट्स एंड द बॉडी शुड बी 22 पॉइंट्स, but this should be changed according to the presentation and the points that we are going to present. So it is not a fixed rule, but it is a one of the suggestions that 44 point जो है title के लिए use करें। सर हाँ जी। सर एक चीज पूछना था, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द एलसीडी ऑल्सो हाउ मच इट इज डिस्टेंस फ्रॉम द स्क्रीन. Yeah. So normally we used 24 and 20 in the foreground and 24 in the title. हाँ, that is quite enough. Quite is quite enough. 44 इसलिए बता रहे हैं कि बहुत अच्छे से दिखे, कोई ऐसा कोई
मतलब कहीं पे भी कुछ ऐसा प्रेजेंटेशन करते, कई बार क्या होता है जैसे जो एलसीडी प्रोजेक्टर होता है, उसका Right, right. प्रोजेक्शन में कभी भी कुछ अगर हमको बहुत पास रखा हुआ है, अब हम कह नहीं सकते ना जब हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो एलसीडी प्रोजेक्टर किस जगह पे रखा रहेगा। Exactly, तो exactly. तो इसलिए जो है इट इज बेटर टू की 44 पॉइंट्स एज टाइटल, 22 पॉइंट्स एज बॉडी, बट दिस इज नॉट फिक्स, जैसे अभी मैंने कहा इट इज नॉट फिक्स, सजेशन है, Okay, sir. यू कैन Okay, फॉलो। sir. सो जैसे यहाँ पे लिखा है, आप देखेंगे एक पॉइंट में लिखा है यू डू नॉट वांट योर फॉन्ट टू स्मॉल सो दैट ऑडियंस कैन नॉट, मतलब ये जो है इस टाइप का फॉन्ट बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे, फॉन्ट साइज जो नहीं दिखता है, मतलब जैसे हम कॉपी अपने बुक्स में प्रिंट आउट में देखते हैं वो फॉन्ट तो बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, मतलब वो साइज नेचुरली वो साइज से बहुत बड़ा होना चाहिए। So capitalize only to make a point, not all the time. So your entire sentence should not be capitalized. हमको हमेशा सेंटेंस केस यूज करना चाहिए, और सेंटेंस केस जैसे वर्ड में, एमएस वर्ड में आप सेंटेंस केस सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पूरे टेक्स्ट को वो सेंटेंस केस में कन्वर्ट करेगा। और कैपिटलाइज तभी करना है जब इट इज वेरी नेसेसरी, कोई एम्फोसाइज करना है किसी पॉइंट को तो कैपिटलाइज कर सकते हैं, या कोई टाइटल दे रहे हैं या कोई एब्रीविएशन को आप पुटअप करना चाहते हैं तो कैपिटलाइज करके उसको पुटअप करते हैं। कॉन्स्टेंट्स को डिस्प्ले कराना चाहते हैं, दैट इज दिस इज समथिंग विच इज कॉन्स्टेंट, कैन नॉट बी, विल नॉट बी चेंज, तो उसको आप कैपिटलाइज करके दिखा सकते हैं। जनरली वी पुट कैपिटलाइज्ड structure of for those things which do not change or which are constant, which are keywords or which are abbreviations, उसके लिए हम कैपिटलाइज जो है कैपिटलाइजेशन यूज करते हैं। स्टे अवे फ्रॉम कॉम्प्लिकेटेड फॉन्ट्स, अभी जो लिखा है स्टे अवे फ्रॉम कॉम्प्लिकेटेड फॉन्ट्स, इस टाइप के फॉन्ट्स को यूज नहीं करेंगे, ठीक है। बुकमैन एंटिका करके भी एक फॉन्ट होता है, वो भी काफी बेटर अच्छा फॉन्ट है, टाइम्स रोमन जैसे ही दिखता है, तो वो फॉन्ट आप यूज करें, इस टाइप के फॉन्ट्स यूज नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ फॉन्ट्स ऐसे रहते हैं जो पूरे सेंटेंस को कैपिटलाइज कर देंगे या पूरे सेंटेंस को डेकोरेटिव बना देते हैं, वो उस टाइप का आपको फॉन्ट हमको यूज नहीं करना है। यूज वन फॉन्ट स्टाइल थ्रू आउट, सो एज वी आर यूजिंग द बैकग्राउंड थ्रू आउट द presentation same, similarly we should use the same font throughout the presentation. So then comes the slide layout, avoid heavy text, ठीक, तो हेवी टेक्स्ट बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, ठीक है। जो है इट शुड नॉट बी फिल्ड अप विथ सेंटेंसेस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, जैसे अभी ये स्लाइड को आप देख रहे हैं, दे आर स्पेसिफिक पॉइंट्स दैट वी हैव पुट, उसको फिर आप अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करें। यू शुड हैव सम रिटन मैटर विथ यू व्हाइल यू आर प्रेजेंटिंग, जैसे मैंने शुरू में भी आपको सजेस्ट किया था कि हमारा जो मेन प्रेजेंट, आप क्या करें कि जैसे आप प्रेजेंटेशन बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो जितना भी आपके दिमाग में वर्ड्स आ रहे हैं, सेंटेंसेस आ रहे हैं, आप लिखते जाएं, प्रेजेंटेशन बना लीजिए, फुल ऑफ वर्ड्स बनाइए, उसको फुल ऑफ टेक्स्ट बनाइए, और उसके बाद फिर आप उसमें से पॉइंट्स निकालिए, छाटिए, और उन पॉइंट्स को अलग निकाल के एक अलग प्रेजेंटेशन बनाएं। सो आप हम क्या करेंगे, दो टाइप का प्रेजेंटेशन बनाते हैं। एक प्रेजेंटेशन जो होता है हमारे दिमाग में जो भी आ रहा है हम तुरंत उसको लिखते जाते हैं, और लिखते लिखते जितना भी लिख सकते हैं सब कुछ लिख देते हैं प्रेजेंटेशन के अंदर में, वो पूरा भरा हुआ रहता है टेक्स्ट से। उसके बाद हम क्या करते हैं, उन्हीं स्लाइड्स को हम अच्छे से समझ के उनमें से मेन पॉइंट्स निकाल निकाल के एक दूसरा स्लाइड बनाते हैं। तो हम जो प्रेजेंट करेंगे वो दूसरे स्लाइड को प्रेजेंट करेंगे, और जो पहला जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हमने बनाया था उसका हम प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रखेंगे, जिससे कि हम उसको बहुत आसानी से स्लाइड वाइज एक्सप्लेन कर सकें, क्योंकि कोरिलेशन भी होना चाहिए हमको, बिकॉज वी शुड नॉट टेक टू मच टाइम to understand what we are presenting on the screen and what we are going to explain. तो हमारे पास अगर स्लाइड्स रेडी हैं, प्रिंट आउट में एक स्लाइड्स रेडी है जो जिसमें टेक्स्ट है पूरा, जिसको एक्सप्लेन करना है मुझे, और एक स्लाइड जो है प्रेजेंटेशन पे चल रहा है जिसमें सिर्फ पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो उन पॉइंट्स को हम जो है अपने कोरिलेट करके तुरंत के तुरंत बता सकते हैं। अवॉइड फुल पैराग्राफ्स अनलेस कोटिंग, सो unless and until you are citing some quotes from a research journal or some research book, some book or some research journal or conference, तब तक जो है पैराग्राफ्स बिल्कुल नहीं बनाना है। पैराग्राफ्स लिखना जो है इट इज अ वेरी बैड आइडिया, सो पैराग्राफ राइटिंग बिल्कुल भी नहीं करना है, पॉइंट्स वाइज ही सिर्फ लिखना है, दैट टू नॉट टू मच cluttered. Create a slide for each main point because it keeps the presentation focused, helps the audience concentrate on each point, prevents audience from reading ahead. So each point जो है should be accompanied by a particular slide. उसमें उस पॉइंट उस पॉइंट से रिलेटेड सब पॉइंट्स रहने चाहिए,
और उसका जो एक्सप्लेनेशन रहेगा वो आपके पास प्रिंट आउट में रहना चाहिए, ready with your printout. So this kind of arrangement should be done when we are when we are uh, seeing about or visualizing the slide layout. इसमें हमको ध्यान देना है, ठीक. Then comes the components of an oral research presentation. So we will see इसमें कुछ मैं जो मैंने यहाँ पे आपको लेआउट बताया है, this layout is not fixed. ये जो लेआउट बताया गया एक जनरल लेआउट है, ये हर रिसर्च के हिसाब से चेंज होता रहता है. इंजीनियरिंग रिसर्च में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, मैनेजमेंट रिसर्च में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, साइंटिफिक रिसर्च में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. तो बट एक बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे ही रहता है. So each research presentation, regardless of your field of study, should contain some common sections. So be aware that your particular research project will dictate the exact sections. So it will all depend upon the research project that we are working on. Accordingly, we have to put the points, but these points, these are the topics which we have to generally cover in our research presentation. The first is the introduction part. So in the introduction part, we introduce the basic concepts, what we are actually going to use in our research. Many algorithms we might be using, many techniques we might be using. So we have to introduce those techniques. About those techniques we have to एक तरह के about section जैसे कह सकते हैं, ठीक. तो ये about का section होगा about everything that we are going to use in our research. So it should be concentrated only on the research. So whatever we have used, tools that which we have used, the techniques that we have used, the literature or the ideas that we have used, उसके बारे में जो about वाला section होता है वो introduction में होता है. So introduction में हम उनके बारे में पूरा बताते हैं. अगर हमने कुछ formulas यूज किए हैं तो उन formulas का कुछ basis बता सकते हैं, उसके base formulas भी बता सकते हैं, या हमने कुछ derivations किए हो उनका कुछ basis हो तो वो बता सकते हैं. तो all these things will be put in the introduction part. Second part is the background or literature review. Literature review जो है, it is the literature survey. So literature survey should be quite extensive, and as we have discussed earlier that it should be presented in a tabulated form, and do not need to put each and every literature review in the presentation. Just we have to put 4 or 5 important literature review points that we have done. So 4 या 5 रिसर्चर्स का जो आपने जिसको बोलते हैं ना कि वो इंस्पिरेशन है. नेचुरली क्या होगा, देखिए आप कभी भी कोई रिसर्च करने के लिए जाएंगे, आपको सबसे पहले क्या होगा, यू हैव टू परफॉर्म सम लिटरेचर रिव्यू, यू हैव टू परफॉर्म सम लिटरेचर सर्वे, यू हैव टू स्टडी मटेरियल्स व्हिच आर ऑलरेडी देयर इन द रिसर्च कम्युनिटी, and from those materials you will extract your content depending upon the future scope of those research articles. तो उसमें जो research articles में future scope दिए हैं उसको यूज करके आप क्या करेंगे, you identify the gap, जिसको बोलते हैं research gap. तो रिसर्च गैप आइडेंटिफाई करने के लिए आप क्या करेंगे कि पहले तो आप 50 रिसर्च पेपर्स पढ़ेंगे. 50 रिसर्च पेपर्स को पढ़ने के बाद फिर आपको लगेगा कि इसमें से जो है आपको एक आइडिया आएगा. आइडिया आने के बाद फिर उसमें से आपको लगेगा कि आउट ऑफ these 5 research papers are exactly what I want to do, they are helping me to do, or they are the basis of what I want to do in the future. जो उसमें नहीं है मैं करना चाहता हूँ, लेकिन वो 5 जो 3 या 4 या 5 रिसर्च पेपर्स हैं वो मेरे कोर रिसर्च पेपर्स हैं जिनको मैं एज ए बेसिस अपना यूज करूंगा. वही सिर्फ लिटरेचर रिव्यू में डालिएगा. लिटरेचर रिव्यू को जो है 1 2 3 4 बात 10 15 20 स्लाइड्स में नहीं डालना है. मुश्किल से 2 या 3 स्लाइड 2 या 3 स्लाइड मैक्सिमम लगना चाहिए लिटरेचर रिव्यू में. इससे ज्यादा स्लाइड्स यूज नहीं करना है, बिकॉज द एंटायर प्रेजेंटेशन दैट यू हैव टू पुट, दैट यू हैव टू क्रिएट, वो मैक्सिमम आपका जो है 15 मिनट्स टू 25 मिनट्स तक जा सकता है. इससे ज्यादा कोई एक तो कोई पेशेंटली सुनेगा भी नहीं. अगर 25-30 मिनट का प्रेजेंटेशन बना देते हैं, 40 मिनट का बना देते हैं, तो कोई पेशेंटली सुनने वाला नहीं है. सो हमको क्या करना है कि वी हैव टू कीप इट शॉर्ट रखना भी है, प्लस हमारा जो भी आइडिया है उसको क्लियर कट पुट भी करना है. तो उसके लिए जो है वी शुड बी वेरी फोकस्ड. सो लिटरेचर रिव्यू में हम टैबुलेटेड फॉर्मेट में प्रेजेंटेशन देंगे, और कुछ सिलेक्ट बहुत ही कोर पेपर्स जो है 4 या 5 रिलेटेड टू द रिसर्च विच इज एब्सोल्युटली कनेक्टेड और डीपली कनेक्टेड टू आवर रिसर्च, उसी को सिर्फ उसमें देना है. बाकी सब जो है आपके थीसिस में आएगा. जो बाकी जो 50 या 100 या 150 आपने पेपर्स रेफर किए होंगे वो आपका
को आपने थीसिस में डालना है, उसको पूरे डिटेल्स में डालना है, तो थीसिस में कंप्लीट डिटेल्स रहेगा, लेकिन प्रेजेंटेशन में सिर्फ 4 या 5 इंपॉर्टेंट रिसर्च पेपर्स ही रहेंगे जिसका रिव्यू आपको देना है। उसके बाद रिसर्च क्वेश्चंस, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अभी मैंने कहा कि गैप, रिसर्च गैप जिसको बोलते हैं, तो रिसर्च गैप आपने क्या आइडेंटिफाई किया, दैट इज वेरी वेरी नेसेसरी। रिसर्च गैप मीन्स दैट वट एवर इज डन in that particular field and what it can be done or what a particular researcher has done. Say for example आपने एक particular research जो है को पढ़ा, आपने थीसिस पढ़ा, तो उसमें से आपको एक लगा कि इसमें ये चीज मिसिंग है, तो वो चीज आप जो है करना चाहते हैं, एंड दैट इज ए गुड रिसर्च टॉपिक, तो दैट बिकम्स द रिसर्च क्वेश्चन। प्लस रिसर्च क्वेश्चन में एक और चीज आ सकता है कि हाउ द रिसर्च विल हेल्प टू सर्व द सोसाइटी, how the research will help to benefit people, how the research will help to benefit the academic community, how the research your research will contribute to in improving the knowledge of the research community, or how it will help to improve the condition of a particular particular chunk of the society, और पूरे सोसाइटी के लिए अगर हेल्पफुल है, तो इस टाइप से जो है क्वेश्चंस आते हैं रिसर्च, वो रिसर्च क्वेश्चंस में आ जाएंगे। नेक्स्ट कम्स द रिसर्च मेथड्स। रिसर्च मेथड्स में द मेथड्स दैट वी हैव यूज्ड, द मेथोडोलॉजीज दैट वी हैव यूज्ड फॉर आवर रिसर्च। सो बहुत सारी मेथोडोलॉजीज होती है रिसर्च में, आप तो पढ़ ही रहेंगे, अभी पढ़ ही रहे होंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी में। सो अलग अलग कितने टाइप के रिसर्च आप करते हैं, आप डेटा कैसे के कलेक्शन करते हैं, उसमें उस डेटा को कैसे स्टैटिफाई करते हैं, उसके ऊपर से फिर आप उसमें रिसर्च कैसे करेंगे, ये पूरे जो है वो रिसर्च मेथड्स में आ जाएगा। इंजीनियरिंग में जो है जनरली हम जो है वी अडॉप्ट सम एल्गोरिदम दैट बिकम्स द रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर अस। सो एल्गोरिदम को हम कुछ मॉडिफाई करते हैं या उसमें कुछ ऐड करते हैं, या फिर एक नया अगर प्रपोज कर, ऐसे नया भी हो सकता है, नया एल्गोरिदम भी प्रपोज कर सकते हैं, तो वो मेथोडोलॉजी पे आ जाता है। आफ्टर दैट फाइंडिंग्स एंड डेटा, डेटा और फाइंडिंग्स जो है इट कैन बी ओनली डन व्हेन वी हैव डन सम एक्सपेरिमेंट्स। सो ये डेटा और फाइंडिंग्स वाला पार्ट आपका तभी आएगा जब आपने डेटा यूज करके कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। तो नाउ यू हैव टू इंट्रोड्यूस द डेटा हियर, कि किस टाइप का डेटा आप यूज कर रहे हैं, कहाँ से, क्या सोर्स है उस डेटा का, उसका ऑथेंटिसिटी क्या है। डेटा हम एक्सपेरिमेंटल डेटा यूज नहीं करते हैं, जब हम रिसर्च करने बैठते हैं तो एक्सपेरिमेंटल डेटा हमको यूज नहीं करना, हमको एक्चुअल डेटा पे काम करना रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट पर अगर काम कर रहे हैं, तो यू शुड एक्सट्रैक्ट योर डेटा फ्रॉम द एनएससी वेबसाइट। That is the standard way of extracting data. That is the standard place where the government of India is putting the correct data in the for the people, for everyone to see. So उस टाइप का हमको डेटा जो है कलेक्शन जो है हमारा जो है जिस पे हम रिसर्च अपना एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, वो एक्चुअल डेटा पे करना चाहिए। हाँ, ऐसे भी हो सकता है आप डमी डेटा पे भी कर सकते हैं, जस्ट टू टेस्ट योर मॉडल। तो आपने जो मॉडल बनाया है उस मॉडल को टेस्ट करने के लिए हो सकता है आप कुछ डमी डेटा यूज करें, या कोई ऐसा डेटा यूज करें जो एक सैंपल डेटा है, बट दैट डेटा विल नॉट हेल्प यू टू जस्टिफाई योर फाइंडिंग्स। सो आपको अल्टीमेटली जो है ऑथेंटिक सोर्स से डेटा लाना पड़ेगा। वो ऑथेंटिक सोर्स जो है गवर्नमेंट के सोर्सेज होने चाहिए, या कोई स्टैंडर्ड रिपोजिटरी होना चाहिए दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑल इन द रिसर्च कम्युनिटी। तो रिसर्च कम्युनिटी जिस डेटा बैंक को रिकॉग्नाइज करता है, सिर्फ उन्हीं रिकॉग्नाइज डेटा बैंक से आपको डेटा उठाना है और अपने मॉडल में अप्लाई करके देखना है। फिर जो मॉडल में अप्लाई होने के बाद, उसके बाद जो उसका रिजल्ट निकलेगा, आप उसके बाद आपका रिसर्च फाइंडिंग्स निकलेगा उसमें से, कि दैट वॉट एवर यू हैव एनालाइज फ्रॉम द डेटा, वी हैव टू वॉट एवर यू आर द आउटपुट दैट यू हैव फाउंड, हाउ डू यू जस्टिफाई दैट आउटपुट, हाउ डू यू इंटरप्रेट दैट आउटपुट, वो फाइंडिंग्स में आएगा। सो योर इंटरप्रिटेशन ऑफ द आउटपुट from the model is the findings. Then after you have put your findings, then you can put a section सर for एक चीज पूछना था हाँ जी पूछिए। सर, जैसे सीएसओ होता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल डेटा जो हाँ ऑर्गेनाइजेशन हाँ है, हाँ हाँ वहां से हम डेटा लें तो कोई हाँ। प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि नहीं, वहां तो वो सारे रियल टाइम, लोग वो अपना डेटा देते हैं। रियल टाइम डेटा है ना। हाँ सर, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही डेटा एजेंसी है हाँ हाँ, फिर तो सीएसओ। स्टैंडर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, फिर तो सही है। या हमें कैसे पता चलेगा कि मतलब ये डेटा जो है आप यहाँ से हमें डेटा लेना चाहिए? हाँ, तो आप कोई हमें गवर्नमेंट एजेंसी के वेबसाइट पे डायरेक्टली जाकर डेटा कलेक्ट कीजिए ना।
अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, गवर्नमेंट की एजेंसीज है ना जो डेटा प्रोवाइड करते हैं, जैसे आईएसआई अच्छा है, ठीक। इन लोग सब अपना डेटा प्रोवाइड करते हैं। और जैसे मैंने अभी कहा, जैसे आपको अगर स्टॉक मार्केट का डेटा चाहिए तो एनएससी का वेबसाइट है, दैट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, nse.com करके है। तो वो डेटा जो है वो ऑथेंटिक डेटा है। तो लेकिन पॉइंट ओके ये ओके। होता है कि सिर्फ डेटा जो है, रॉ डेटा दैट वी कलेक्ट फ्रॉम एनी सोर्स से आप रॉ डेटा कलेक्ट करते हैं, दैट डेटा हैज टू बी क्लीन्ड, और उसको आपको डेटा प्रोसेसिंग करना पड़ता है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। So before you apply the data, before you use the data, we have to purify the data. We have to find out if there is any problem with the data or not. कई बार क्या होता है, जैसे अब बहुत सिंपल से एग्जांपल्स बता रहा हूँ, जैसे कि आपका डेटा न्यूमेरिक है, तो न्यूमेरिक डेटा के अंदर हो सकता है कि स्पेसेस आ जाएं। न्यूमेरिक डेटा के अंदर में कुछ कुछ जगहों पे हो सकता है कि अल्फ़ाबेट्स आ गए हैं, कुछ कुछ जगहों पे मिसिंग है डेटा, कुछ कुछ जगहों पे जो न्यूमेरिक डेटा है वो आउट ऑफ रेंज है। जैसे सोच लीजिए 10 to 100 के बीच में होना चाहिए, और उसमें जो आया है वो 2000 या 20,000 आ गया है। तो ये बहुत सारा चीज होता है जिसको देखना पड़ता है व्हेन वी एनालाइज द डेटा बिफोर वी एक्चुअली अप्लाई इट ऑन अवर मॉडल। बिकॉज ओके सर। अगर हमने गलत डेटा यूज कर लिया तो हमारा मॉडल जो है वो गलत तरीके से बिहेव करेगा, और हमको कभी भी सही फाइंडिंग्स नहीं मिलने वाला उसमें से। सो ओके कभी सर, भी थैंक। हम डेटा यूज करते हैं उसको हमको हमेशा प्यूरिफाई करना पड़ता है। यू हैव टू क्लीन द डेटा एक्चुअली। तो डेटा क्लीनिंग का एक बहुत स्टैंडर्ड प्रोसेस होते हैं, ठीक है, कुछ स्टेप्स होते हैं डेटा क्लीनिंग के, उसको करने के बाद ही उस डेटा को हम अपने इसमें मॉडल में यूज करते हैं। तो जैसे आप अगर पाइथन प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, आप सीख लें, मैं आई विल सजेस्ट दैट पाइथन प्रोग्रामिंग सभी सीख लें तो अच्छा रहेगा। उसमें डेटा क्लीनिंग के बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस हैं जिनको यूज करके आप अपने डेटा को क्लीन कर सकते हैं, और आप स्टैंडर्ड वे में डेटा को पुटअप कर सकते हैं, सीएसवी फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और सीएसवी फाइल को यूज करके आप अपने मॉडल में उसको अप्लाई करवा सकते हैं। सो दैट इज वन ऑफ द वेरी इजीएस्ट वेज, वन ऑफ द इजी वेज टू क्लीन द डेटा, दैट इज यूजिंग पाइथन। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आता है डिस्कशन एंड कंक्लूजन। तो डिस्कशन एंड कंक्लूजन विल बी रिलेटेड टू व्हाट फाइंडिंग्स वी हैव अचीव्ड एंड व्हाट वी कंक्लूड फ्रॉम द फाइंडिंग्स, एंड हाउ डू वी सजेस्ट, जो हमने शुरू में बताया था हम लोगों ने मतलब रिसर्च क्वेश्चंस में जो हम लोग ने क्वेश्चंस पुटअप किया था वो हमारे कंक्लूजन्स में सॉल्व हो रहा है कि नहीं, ये भी जरूरी है। ऐसा होना नहीं होना चाहिए, एनी क्वेश्चन शुड बी, एवरी क्वेश्चन शुड बी आंसर्ड, देयर शुड नॉट बी एनी क्वेश्चंस व्हिच आर अनआंसर्ड। सो कंक्लूजन में हम वो सिर्फ रिसर्च क्वेश्चंस के आंसर्स को बता देते हैं कि हमने ये कंक्लूजन अचीव किया है फ्रॉम द फाइंडिंग्स, एंड दिस इज यूजफुल इन दिस पर्टिकुलर वे फॉर ए पर्टिकुलर कम्युनिटी और पीपल और फॉर academic community etc. देन कम्स द फ्यूचर रिसर्च, फ्यूचर स्कोप जिसको बोलते हैं। फ्यूचर स्कोप जो होता है, दिस इज वेयर जनरली जो है जो न्यू रिसर्चर्स होते हैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और फ्यूचर रिसर्च जो है आपको खुद को एनालाइज करना पड़ेगा आपके खुद के रिसर्च से कि इसमें और आगे क्या हो सकता है। फ्यूचर रिसर्च जो को सजेस्ट करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको मिस बिल्कुल नहीं कर सकते, हम इसको देना ही पड़ता है। इससे ये पता लगता है कि हमने काफ़ी डीपली अपने रिसर्च को किया है, और हमको मालूम है कि फ्यूचर में भी इसमें और कुछ हो सकता है। सो प्रैक्टिकली देखा जाए तो ऐसा कोई रिसर्च नहीं है जिसका आगे जो है वो फुल स्टॉप है, ऐसा नहीं हो सकता। उसके हमेशा उसके आगे कुछ ना कुछ जरूर इंप्रूवमेंट हो सकता है। देयर इज स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट इन एवरीथिंग। सो फ्यूचर रिसर्च इज नथिंग बट द स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट इन योर करंट रिसर्च। सो आप उसमें जो है उसमें आपको टिप्स देने पड़ेंगे कि ये करके भी आप कुछ अलग इसमें कर सकते हैं, वो करके कुछ अलग कर सकते हैं, डेटा पे ऐसे कुछ करके कर सकते हैं। जैसे बहुत एक सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूँ कि perform if I create a model that can predict a stock price next day. सो आज अगर हम डेटा, आज तक का डेटा उसको अगर दें हमारे मॉडल को, तो वो नेक्स्ट डे को प्रेडिक्ट करके बताएगा कि ये वैल्यू उस पर्टिकुलर स्टॉक का आ सकता है इन द नेक्स्ट डे। तो ये आपने रिसर्च करके बना लिया, आपका मॉडल तैयार है। तो आपका फ्यूचर रिसर्च क्या होगा कि इसको आप ऐसे मॉडिफाई अगर कर दें, मॉडल में थोड़ा सा मॉडिफाई अगर कर दें, तो ये आप नेक्स्ट वीक के लिए भी जो है प्रेडिक्ट करके देख सकते हैं, या नेक्स्ट मंथ के लिए भी प्रेडिक्ट करके देख सकते हैं। सो द मॉडल कैन बी मॉडिफाइड टू प्रेडिक्ट फॉर नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट मंथ, इस टाइप से। तो दिस इज द सजेशन दैट यू हैव टू गिव, यू हैव टू नो दैट योर मॉडल इज केपेबल ऑफ
समथिंग मोर देन व्हाट वी हैव डन हियर, बिकॉज अभी जितना आपने किया इतना ज्यादा किया है कि इसमें अगर और करने बैठेंगे तो एक दूसरा रिसर्च बन सकता है, तो वो जो दूसरा रिसर्च बन सकता है उसको आप फ्यूचर रिसर्च में डालेंगे। तो इसके लिए वी हैव टू एक्सटेंसिवली स्टडी आवर ओन रिसर्च, वी शुड बी वेरी deeply we should have a very deep understanding about our own research, then only we can suggest future research या future aspects और future scope। उसके बाद आएगा रेफरेंसेस। रेफरेंसेस के बारे में डिस्कशन हमने किया था कि रेफरेंसेस वाले, देखिए बिब्लियोग्राफी और रेफरेंसेस में हमने डिफरेंस देखा था। सो इन बिब्लियोग्राफी वी हैव टू पुट ऑल द टेक्स्ट, all the references of the text that we are inspired from, and also we have cited in our research। लेकिन रेफरेंसेस में सिर्फ वही आप जो है पॉइंट्स वही आपके रेफरेंसेस देंगे जो आपने साइट किए हैं, विच आर साइटेड इन द टेक्स्ट। तो साइट जो नहीं किए हैं वो रेफरेंसेस में नहीं आएगा, वो आप बिब्लियोग्राफी में दे सकते हैं। तो रेफरेंसेस जनरली रहता है जिसको स्पेशली जब हम लोग इंजीनियरिंग रिसर्च करते हैं तो रेफरेंसेस ही माना जाता है। बिब्लियोग्राफी नहीं, उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है बिब्लियोग्राफी को, रेफरेंसेस को ही मेन इंपॉर्टेंस देते हैं। बिकॉज रेफरेंसेस मतलब उनका कोरिलेशन होता है, मतलब आपने अगर 50 पेपर्स का रेफरेंस आप साइटेशंस दिए हैं टेक्स्ट के अंदर, तो 50 ही आपके रेफरेंसेस में होने चाहिए। उन्हीं 50 का रेफरेंसेस जो है मेंशनिंग जो है वो आपके रेफरेंसेस में होना चाहिए। Then comes the acknowledgements. Acknowledgements means that you are grateful to whoever you have taken help from. तो उसमें हम acknowledgements में डालते हैं our seniors और our guide, our supervisors and so forth. Depends कि आपने आपको किन किन से हेल्प मिला था, तो acknowledgements में डालना है। और लास्ट में क्वेश्चंस जरूरी होता है, एनी क्वेश्चंस करके एक स्लाइड आता है, एम्प्टी स्लाइड होता है, एनी क्वेश्चंस लिखा रहता है। इज वेरी वेरी नेसेसरी, बिकॉज अल्टीमेटली क्वेश्चंस पूछना ही है, क्योंकि नेचुरली क्वेश्चन पूछेंगे ही। सो एनी क्वेश्चंस वाला स्लाइड लास्ट में रहता है। तो उसके बाद आप थैंक यू वाला स्लाइड भी लग सकते हैं, बट इट इज नॉट दैट मच नेसेसरी, बट क्वेश्चंस वाला स्लाइड जरूरी है लास्ट में। सो दिस इज द वेरी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द ओरल रिसर्च प्रेजेंटेशन। सर एक चीज पूछना था। ठीक है, सो इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? एनी क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड हियर? यस सर, यस सर। सर सर हाँ, पूछिए। हाँ, मैनेजमेंट पूछिए। पॉइंट ऑफ व्यू के से हम कौन सा रिसर्च मेथड ले सकते हैं? जी जी। आपने मैं इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू वो देखिए, रिसर्च मेथोडोलॉजी ऐसा है ना कि आपको पहले तो लिटरेचर रिव्यू करना पड़ेगा। कि लिटरेचर रिव्यू करके आपको पहले तो आप ये आइडेंटिफाई करिए कि आपको किस जगह पे रिसर्च करना है, किस टॉपिक पे करना है। उस टॉपिक को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको पहले तो लिटरेचर रिव्यू करके देखना पड़ेगा कौन सा इंटरेस्टिंग लग रहा है आपको। या तो अगर आपके दिमाग में ऑलरेडी है कि हम मुझे इस पर्टिकुलर लाइन पे रिसर्च करना है, तो आपको तो उसमें पहले जो लिटरेचर रिव्यू करके निकालने पड़ेंगे जो उसमें ही मेजर रिसर्च कर चुके हैं लोग, उसको आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। और उसमें फिर आपको मेथोडोलॉजी समझ में आएगी कि किस मेथोडोलॉजी से जो है लोग अपना रिजल्ट अचीव कर रहे हैं। तो वो पूरा प्रैक्टिकल बेसिस पे रहता है, जो ऑलरेडी कर चुके हैं उसी बेसिस पे आप अपने रिसर्च को आगे बढ़ाएंगे। सो जनरली क्या होता है कि अगर अपने प्रेजेंटेशन में ये लिखें कि ये चीज जो है मैं एकदम नया कोई वो निकाल रहा हूँ, तो मैंने कोई नया सा कोई टेक्निक निकाला है मैंने, जो जो ऐसा कभी कोई यूज नहीं होता, तो ये थोड़ा सा ना बहुत ज्यादा वो हो जाता है, कहना चाहिए कि बहुत इसको बोलते हैं कि अनबिलीवेबल टाइप का हो जाता है। क्योंकि सब लोग को ये मालूम है कि ऑलरेडी कोई इस टाइप का रिसर्च हो चुका है, इसको एक्सटेंड कर रहे हैं हम लोग। जनरली उस टाइप का ही रहता है कि ऑलरेडी उस टाइप के रिसर्चेस हो चुके हैं, हम उसको मॉडिफाई करके आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक। सो इस चीज को जो है अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि उसमें क्या मेथोडोलॉजी यूज करना है, आपको पहले लिटरेचर रिव्यू करना पड़ेगा। लिटरेचर रिव्यू में ही आपको समझ में आने लगेगा कि ये मेथोडोलॉजीज हमको यूज करने पड़ेंगे टू अचीव सम डिफरेंट आउटकम। तो वो तो क्रिएटिविटी का पॉइंट है, पहले आप उसको पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लगने लगेगा, क्योंकि वो आपको गाइड भी हेल्प करेंगे, आपके जो सुपरवाइजर है वो भी आपको हेल्प करेंगे टू आइडेंटिफाई विच मेथोडोलॉजी यू हैव टू यूज। ओके सर। ठीक। सो एनी मोर Thank you, sir. क्वेश्चंस रिलेटेड टू द पॉइंट्स दैट वी हैव डिस्कस्ड नाउ? नो सर, कुछ नहीं। ठीक ठीक, थैंक यू। चलिए, नेक्स्ट कम्स द टाइटल स्लाइड। सो द फर्स्ट स्लाइड ऑफ द प्रेजेंटेशन इज a title slide. So each presentation will have a title slide. The slide must contain the title of the project,
which must be the same title that you have used in the abstract submission. So ये बिल्कुल मैच करना चाहिए, टाइटल एकदम एग्जैक्टली मैच होना चाहिए. एक ऐसा टाइटल, अब टाइटल चॉइस करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है. कभी कभी क्या होता है कि हम रिसर्च कर रहे हैं और एक स्पेसिफिक आउटकम के लिए कर रहे हैं. जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि डिजाइन ऑफ ए मशीन लर्निंग टेक्निक, design of a machine learning technique to predict Nifty 50 इंडेक्स वैल्यूज. अब ये टाइटल को आप अगर समझें कि हम जो है एक मशीन लर्निंग टेक्निक को डिजाइन करना चाहते हैं जो सिर्फ निफ्टी 50 को ही प्रेडिक्ट करेगा. सो इट इज नॉट ए यूनिवर्सल प्रेडिक्टर. ये जो हमारा बनेगा वो सिर्फ निफ्टी 50 के वैल्यूज को ही प्रेडिक्ट करने के लिए बनेगा. ठीक. सो अगर जैसे टू प्रेडिक्ट से रेनफॉल इन छत्तीसगढ़ रीजन, टू प्रेडिक्ट रेनफॉल इन छत्तीसगढ़ रीजन, तो अगर मैं ऐसे लिख दूं तो इसका मतलब सिर्फ मैं छत्तीसगढ़ रीजन में ही का ही डेटा मैं यूज करूंगा और किसी रीजन का डेटा मुझे यूज नहीं करना है. तो इस टाइप से हमको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि अगर हम कॉन्फिडेंट हैं कि हम जो है एक पर्टिकुलर, क्योंकि जनरली ऐसे ही होता है, पिन पॉइंट करना ही पड़ता है कि एग्जैक्टली हमको करना क्या है. तो जैसे मैंने अभी बोला कि रेनफॉल प्रेडिक्ट करना है इन छत्तीसगढ़ रीजन, तो दैट इज ए गुड टाइटल. एक्चुअली देखा जाए तो ये एक बेटर टाइटल है रादर देन ऐसे लिख देना कि टू प्रेडिक्ट रेनफॉल. ठीक है, प्रोजेक्ट या मशीन लर्निंग, डिजाइन ऑफ ए मशीन लर्निंग टेक्निक टू प्रेडिक्ट रेनफॉल. तो ये जो है एक बहुत ही वेग काइंड ऑफ ए टाइटल हो जाता है, जिसमें क्या हो गया, रेनफॉल मतलब आपको फिर जो उसका जो रिसर्च एरिया हो जाएगा ना, वो बहुत एक्सटेंसिव हो जाएगा. मतलब आपको हर देश का रेनफॉल, हर जिले का रेनफॉल, हर स्टेट का रेनफॉल, ऐसे पूरा मतलब जिला से लेकर शुरू करते हुए देश और पूरे वर्ल्ड का रेनफॉल को आपको जो है कंसिडर करना पड़ेगा. तब जाके आपका रिसर्च जो है वो सही बनेगा, जस्टिफाई हो पाएगा. तो टाइटल को बनाते वक्त बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि दैट टाइटल शुड जस्टिफाई द रिसर्च दैट वी हैव डन. ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि टाइटल जो है ब्रॉड है और हमने रिसर्च कॉन्सेंट्रेटेड करके रखा हुआ है, नैरो करके रखा है. ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक. सो हमको बहुत बैलेंस ध्यान रखना पड़ता है, बैलेंस रखना पड़ता है कि टाइटल शुड बी वेरी अप्रोप्रिएट विद द रिसर्च. रिसर्च में जो भी हमने दिखाया है वो एग्जैक्टली टाइटल में रिफ्लेक्ट होना चाहिए. टाइटल अगर बहुत ज्यादा प्रॉमिस कर रहा है और हम कम कर रहे हैं तो ये बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है. तो टाइटल को सिलेक्ट करते वक्त कोशिश करें नैरो डाउन करके ही टाइटल बनाएं, ज़्यादा बेटर है. क्योंकि उससे क्या होता है कि आपका रिसर्च एरिया लिमिटेड हो जाता है तो आप उसमें अच्छे से काम कर सकते हैं. लेकिन इतना भी नैरो नहीं बनाना है कि उसमें कोई रिसर्च करके दिखाने से कोई फायदा नहीं है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए. सो हमको बहुत ज़्यादा बैलेंस बना के चलना पड़ता है कि वो रिसर्च का फायदा भी लोगों को पहुंचे और वो बहुत ज़्यादा एकदम जिसको यूनिवर्सल काइंड ऑफ ए टॉपिक नहीं होना चाहिए. थोड़ा नैरो डाउन करके स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर ही रिसर्च करना है. तो दैट टाइटल जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो टाइटल जो आप सिलेक्ट करें वो ध्यान से सिलेक्ट करें. सो टाइटल स्लाइड जो है ये टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट रिप्रेजेंट करना चाहिए. दैट शुड बी कंसिस्टेंट. अब उसको आप एक बार सेट कर लें, वो पूरे आखिरी तक आपके सबमिशन तक सेम होना चाहिए. टाइटल कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए. पीपल विल डिसाइड वेदर दे वांट टू अटेंड योर प्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन द टाइटल एंड एब्स्ट्रैक्ट. सो ये तो खैर इंटरेस्ट पे रहता है कि आप जो टाइटल प्रेजेंट करने दिखाएंगे उस टाइटल के ऊपर. जैसे क्या होता है कि आप कोई प्रेजेंटेशन देते हैं तो जनरली उस ऑर्गेनाइजेशन में या उस रिसर्च सेंटर में उसको फ्लोट किया जाता है कि ये टाइटल पे एक रिसर्च प्रेजेंटेशन होने वाला है, इंटरेस्टेड पीपल कैन ज्वाइन. सो टाइटल से जो है इंटरेस्टेड पीपल जो है वो दे कैन कम टू द प्रेजेंटेशन. इट मस्ट इंक्लूड योर नेम, योर फैकल्टी मेंटर्स नेम एंड डिपार्टमेंट एंड द नेम एंड द लोकेशन ऑफ एन इंस्टीट्यूशन. ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर लिखना है. So your name should be there along with the supervisor and co-supervisor's name, with their departments, with their salutations and things वो होना चाहिए properly, जो है mention होना चाहिए. आपका नेम, जैसे हम अगर हम स्टूडेंट हैं तो हमारा नेम होगा, साथ में हमारा एनरोलमेंट नंबर भी साथ में रहना चाहिए. उसके नीचे आपका आ जाएगा मेंटर का नेम, दैट इज सुपरवाइजर एंड को सुपरवाइजर के नेम्स. सुपरवाइजर और को सुपरवाइजर क्या पोस्ट में है, उनका सैल्यूटेशन क्या है, डॉक्टर हैं क्या है, उनका पोस्ट क्या है और किस ऑर्गेनाइजेशन में है, ये इंफॉर्मेशन जरूर देना है. और जो है आप अपना इंस्टीट्यूशन का भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, लेकिन उतना उतना वो वेटेज नहीं रखता है. लेकिन आपके मेंटर्स कहाँ पे हैं उनका वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है. और जो है आप अपने नेम के साथ अपना एनरोलमेंट नंबर लिख सकते हैं. तो दिस शुड बी देयर इन द टाइटल स्लाइड. ये टाइटल स्लाइड में होना बहुत ज़रूरी है.
सो दिस आर द सम बेसिक एग्जाम्पल्स है. सो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है रिचर्ड ए एस्पिनोजा लिखा हुआ है. तो दिस इज द प्रेजेंटर और रिसर्च स्कॉलर है. और उसका फैकल्टी एडवाइजर, उसके बारे में लिखा है स्टीव आर स्मिथ पीएचडी, डिपार्टमेंट ऑफ वगैरह, उसको बड़ा डिटेल बताया इसमें. ठीक. सो इस टाइप से जो है वी हैव टू पुट द टाइटल स्लाइड. तो टाइटल स्लाइड को बनाते वक्त थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि सैल्यूटेशंस प्रॉपरली देना है, प्रॉपरली आपको मेंशन करना है योर सुपरवाइजर एंड को सुपरवाइजर्स नेम विद देयर एफिलिएशंस एंड थिंग्स. नेक्स्ट जो है अभी टाइम हो रहा है नेक्स्ट लेक्चर का. सो वी विल डिस्कस दिस लेटर. सो अभी तक जितना भी अपन ने डिस्कशन किया है, होपफुली इट इज क्लियर. किसी को और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं. नेक्स्ट नेक्स्ट प्रेजेंट उसका नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है. एनी क्वेश्चंस नाउ? नो सर. ठीक है. सो आई विल टेक No, द sir. अटेंडेंस. अभी अटेंडेंस ले लेता हूँ मैं.